what members had asked, I think I've addressed. However, there's one issue which I would want to draw the members' attention. On employment, I've given a lot of information, opposition leader. ट्रांसफर टू होम पीएम गरीब कल्याण योजना ने किया 20 करोड़ महिलाओं को 31,000 करोड़ 3 करोड़ दिव्यांग विधवाओं को भी और बाकियों को भी किया 3,000 Sir, Sir, I'll come to one issue on which I certainly want to draw the attention of this House. So there is a culture in this House since when the Parliament was established, and all of us have been swearing by the Constitution. And functioning effectively to make India a very strong democracy. But it was such a disappointment for me. I was here that day to hear the former president of the opposition party stand up and say, I will only speak on the farmers' issue and then I'll go quiet. Honorable Speaker, sir, because there was a lot of demand and you gently reminded, saying there is this budget discussion now and that we should discuss the budget. Huh? Yes, I concede that, no worries. What am I doing? Sir, I'd like to ask you, sir, what am I doing? I am talking on the budget. I am talking on the budget. I am replying to the members who stood up and spoke on the budget debate. For each one, they're on their issue. On each one, on their issue. Each member stood up and spoke the issues which they thought were. Please listen. Please listen. Please listen. Don't unnecessarily read my mind in advance. Please listen. Sir, Honorable Speaker, sir, the attempt here is to reply to each member for the various issues that they have raised. And I shall reply for the issues raised. Yes. And even justifying now, I agree. Oh, farm issues definitely are relevant for the budget. And even the honorable member who's not present here, and I'm not taking his name, but I also want to address the issues raised by him that day. Farm issues will have to be spoken because they are also part of the budgetary discussion. And yes, don't worry, I'm answering. Please hear now. Please hear. Sir, kindly, sir, I want, you don't want me to answer issues raised by your honorable leader? I'm answering. I'm answering. Sir, oh yes, don't worry, I'm answering that. You don't mind? You don't mind? Sir, if you have heard Honorable Member Suresh, who says I should take the name, and if you give me the permission, in the absence of that member, I'll take his name. All right, sir? Now therefore, and the member had said, farm bills are also part of the budget, and I'm laying the foundation. And therefore, I'm speaking about it. And therefore, I'll please respond, sir. I'm sure you will help me. When he stood up, since Kodikonil Suresh ji has given me permission, and you, I suppose, wouldn't mind me, Shri Rahul Gandhi, when he stood up and to speak, he's. बोलिए मंत्री जी बोलिए आप बोलिए Sir, for the foundation laid on the budget. नहीं, एक मिनट मंत्री जी,
माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी किसी का नाम ले रही है तो वो सदन का सदस्य तो नाम ले सकती है, उसमें क्या दिक्कत है? वो सदन का सदस्य नाम ले सकती है। नो उपस्थित नॉन उपस्थित का सवाल नहीं, माननीय सदस्य का नाम ले सकती है। सर, सभी सदस्यों का नाम ले रही है ना, जिन जिन ने बजट पर चर्चा करी है। बोलिए। Sir, when the foundation was being laid for the budget speech, which never happened, on the matters raised during that laying of the foundation, there are some things which I want to ask. And I'll also say my expectation when he stood up to lay the foundation, my expectations were that he will explain as to why the Congress party has taken a U-turn in its position. 2019 election manifesto, they said that very similar things which we have done in the Farm Act. So, sir, please, sir, allow me to give a response, sir. This kind of a disruption is unwarranted. Please, Mani sir, please. Have I said anything unparliamentary, sir, for this disruption? Sir, we expected that he would stand up. This is number one. I have 10 such things to say. 10 विषय के ऊपर मैं मेरा एक्सपेक्टेशन आपके सामने रखना चाह रही हूं, सर, जिसको कभी ना कभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब देना ही पड़ेगा। सर, खड़े होकर के जब फाउंडेशन ले कर रहे थे बजट स्पीच का, जो बजट स्पीच नहीं हुआ उसका फाउंडेशन ले करते हुए फर्स्ट इशू मेरा एक्सपेक्टेशन था, हाँ, बजट में चर्चा करने से पहले फार्म लॉस के ऊपर ये बात बोलेंगे, ये स्पष्टीकरण देंगे कि क्यों कांग्रेस पार्टी की पोजीशन यू टर्न लिया। पहले तो इसका समर्थन देते थे, अभी क्यों बदला, वो पहला है। सेकंड, फार्मर्स के इतना ध्यान देने वाले कांग्रेस फार्म लोन वेवर के बारे में बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन जीतने के लिए वायदा देते थे कि फार्म लोन दे रहे हैं हम, प्लीज वोट दे दो। जनता भी भरोसा रख करके वोट दिलाए, मगर मध्य प्रदेश में उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। फार्मर्स आज तक मांग रहे हैं लोन वेवर, क्यों नहीं हुआ? हमें वोट मांगा, वोट ले लिया, सरकार बनाने के बहाना किया, मगर सत्ता भी उनके हाथ में नहीं है। मगर फार्म लोन का गुमराह करके किसानों का बैकस्टैप करके चले गए कांग्रेस। राजस्थान में आज भी कंप्लेंट्स है, फार्म लोन्स नहीं हो रहे। मेरा एक्सपेक्टेशन था सर, फार्म लोन सर, कर्जा माफी राजस्थान में नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, जहां भी छत्तीसगढ़ में भी कर्जा माफी नहीं हुआ। सर, मेरा एक्सपेक्टेशन यही था जब वरिष्ठ नेता उठ करके भाषण देने से पहले फाउंडेशन ले कर रहे थे, कम से कम ये मानेंगे कि कर्जा माफी क्यों नहीं हुआ, उसको बयान देंगे, नहीं दिया। सर, तीसरा, 10 में से तीसरा, मैंने सोचा वो खड़े होकर के फाउंडेशन बजट के भाषण देने से पहले ले कर रहा है, उस समय कम से कम ये बात बोलेंगे कि मैंने आदेश दे दिया पंजाब सीएम को, वो जो काला कानून है जिसके द्वारा किसान जेल में जाने वाले का प्रोविजन है, उसमें 5 लाख का फाइन का प्रोविजन है, प्रावधान है उसमें, वो दोनों को हटाने के लिए मैंने हमारा चीफ मिनिस्टर पंजाब का उनको आदेश दे करके आया हूं। ये बात पार्लियामेंट में खुलासा करेंगे, ये मैंने सोचा, मैंने एक्सपेक्टेशन रखा, मगर ना, वो भी नहीं हुआ। मगर आरोप इस तीनों कानून के ऊपर, ये तीसरी बात, 4th पार्ट सर,
राहुल गांधी जी उस दिन जब बात कर रहे थे बजट में नहीं, फार्म लॉस के ऊपर, फाउंडेशन है ठीक है, सुनते हैं, उस समय मैंने ये भी एक्सपेक्ट किया वो कम से कम ये बात बोलेंगे कि किसान को बहुत ही दुख है, दर्द है, वो पराली के विषय में उनको बहुत ही दुख हो रही है, उसके वजह से उनको कुछ राहत दिलाएंगे कांग्रेस के सरकार के द्वारा पंजाब में, जिससे पराली वो अभी का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, उनको राहत दिलाएंगे, ये घोषणा करेंगे, ये भी मैंने एक्सपेक्ट किया। नहीं, वो भी नहीं हुआ सर। पांचवी, मैंने सोचा नहीं बजट के ऊपर चर्चा नहीं, फार्म लॉस के ऊपर मैंने ये एक्सपेक्ट किया कि हमारे 3 जो कानून है उसमें से कम एक खंड निकाल करके, एक क्लॉज निकाल करके वो बोलेंगे देखो इससे क्लॉज के वजह से किसान को नुकसान होने वाले हैं, इसीलिए हम समर्थन नहीं करेंगे। इधर वोटिंग में भाग लिया, समर्थन दिया, फिर भी अभी मन बदल दिया और इस क्लॉज के वजह से ऐसे करके इन 3 कानून से कम एक पॉइंट दिखाएंगे कि दिस इज अगेंस्ट द फार्मर। मैंने सोचा, मैं एक्सपेक्ट किया वो कम से कम वो बात बोलेंगे फाउंडेशन ले करने के समय, नहीं वो भी नहीं हुआ। सब 5th पॉइंट हो गया, 6th पॉइंट में आ रही हूं। मैंने ये भी एक्सपेक्ट किया कि राष्ट्रपति भाषण के समय माननीय प्रधानमंत्री जी का जवाब था, उसमें उन्होंने बहुत सारे छोटा किसान के ऊपर बात बोली। मैंने सोचा उन विषयों में, क्योंकि छोटा किसान से हमारे दो के लिए किसान से जमीन हड़पती गए, मैंने सोचा वो खड़े होकर के ये बात बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी आपने तो स्मॉल फार्मर्स के ऊपर इतना अच्छा बोल दिया, मैंने मेरे अपना 2 से बोल दिया प्लीज जमीन वापस कर दो फार्मर्स को, क्योंकि हम तो सस्ते में उनसे ले लिया, मगर ये किसान का जमीन है, हम खड़े होना है, राजनीति में है, इसीलिए राजनीति के हमारे परिवार हम और मैं खड़े होना है, आप जमीन वापस कर दो जी। और इधर हाँक करके बोल सकते थे हमारे 2 में दामाद को मैंने आदेश दर के आई हूं कि जमीन वापस करो, नहीं किया, वो भी नहीं हुआ। मेरा एक्सपेक्टेशन वो 6th था सर, नहीं हुआ। 7th सर, 7th मेरा एक्सपेक्टेशन, 7वीं मेरा एक्सपेक्टेशन, प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कोटेशन पढ़ाया कि उनके तरफ से भी ऐसे प्रावधान किसान के लिए होना चाहिए, ये भी बोले। मैंने सोचा उस दिन फाउंडेशन ले करने के समय बजट इंपॉर्टेंट नहीं है, किसान कानून इंपॉर्टेंट है, वो कम से कम बोलें कि क्यों डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट को कांग्रेस अभी भूल जा रहे हैं, और याद प्रधानमंत्री जी ने दिलाया। मैंने सोचा कम से कम वो मानेंगे, हाँ हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसे बात किया है, आई हैव टू रेस्पेक्ट, वी विल रेस्पेक्ट नाउ, वी वोंट डिसऑनर डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये कहेंगे, ऐसे मैंने एक्सपेक्टेशन रखा, मगर वो भी नहीं हुआ सर। दैट वाज द 7th। मेरा 8th एक्सपेक्टेशन यही था, मेरा 8th एक्सपेक्टेशन, मैंने सोचा सर चर्चा के समय, बजट के चर्चा के समय, क्योंकि किसान कानून बजट में भाग हो सकता है, इसीलिए बहुत सारे मेंबर्स ने यह प्रश्न उठाया। मुझे याद है मैं सुनी कि एपीएमसी देश भर में कहीं ये तीनों कानून आने के बाद बंद हुआ है क्या? कहीं बंद नहीं हुआ। मैं मेरा एक्सपेक्टेशन के साथ अभी प्रश्न भी पूछ रही हूं, प्रूव इवन इफ 1 APMC मंडी was shut, not one was shut, but you are standing up and speaking। ऊपर से बजट में प्रावधान किया गया है that 30,000 crores which will be collected through that agricultural development infrastructure cess will be actually be going to the states so that APMC infrastructure can be improved।
हम ऊपर से फंड भी दे रहे हैं स्टेट्स को एपीएमसी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, ये भी नहीं बोला। मगर फाउंडेशन लेते रहा, फाउंडेशन ले करते रहा, भरे नहीं और वापस चले भी गए बिना चर्चा बजट के ऊपर। सर, नाइन्थ पॉइंट, ये मेरा प्रश्न है, एक्सपेक्टेशन था मगर अभी प्रश्न है, वो क्यों, व्हाई डज ही चूज टू इंसल्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज? व्हाई डज ही चूज टू इंसल्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज? क्योंकि उस दिन इधर सम्मान्य स्पीकर साहब को इंसल्ट हुआ, उनके बड़प्पन है, उन्होंने जस्ट आप लोग ने मुझे चुनकर इधर बिठाया, इसलिए प्लीज हाउस शुड गो एज पर द रूल्स ऑफ दिस हाउस, ऐसे करके बात छोड़ दिया। मगर इधर इंसल्ट, इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह का इंसल्ट वो कानून के ऊपर, उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह विदेश में जब प्रधानमंत्री के नाते गए थे, उस समय उनके द्वारा पास किया गया ऑर्डिनेंस को फाड़ करके फेंका कूड़े में। व्हाई डज ही चूज टू इंसल्ट? एंड राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद चर्चा जो हाउस में होता है, वो खत्म होने के बाद भी उसी विषय के ऊपर चर्चा करना और उसी विषय को कुछ बहाने बात बोलते रहना, कंटिन्यूअसली इंसल्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड अथॉरिटीज, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, तब के प्रधानमंत्री हो, अब के प्रधानमंत्री हो, continuously insulting. Oh yes, speaker. Sir, last 10th point, sir. 10th point. मेरा 10th point. Sir, कंटिन्यूअसली फेक नरेटिव्स क्रिएट करते रहे। अरे रे कोविड आ गया, पूरे भारत नुकसान में चले जाएगा, अरे रे इतने सारे लोग मर जाएंगे। मेरे पास पूरे कोटेशन है, समय समय पर जो हमारे वरिष्ठ नेता बोलते रहे, मेरे पास पूरे कोटेशन से, मैं आपके समय इसमें बिताना नहीं चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू स्पेंड द हाउसेस टाइम ऑन द कोटेशन, बट द सारांश is this: I will constantly say things which will demean India, which will show India in a poor light, and constantly that will be my rebel-like look to insult India, build fake narratives. Nothing will go well for India, यही कहते रहे और हमारे खिलाफ बहुत सारे जो kind of mischiefs, I'm using a lighter word, करने वाले देश के साथ पार्टी की ओर से, सरकार एमओयू नहीं, सरकार एमओयू नहीं, पार्टी टू पार्टी एमओयू करके, जब देश का कुछ बॉर्डर में क्राइसिस होता है, तब हमसे ना बात करते हुए, सरकार से हम छोड़ो, सरकार से ना बात करते हुए उनके दूतावास से बात करके क्या हो रही है बॉर्डर में, करने वाले और कभी भी भारत देश का भरोसा ना करते हुए बाकी सबको भरोसा करने वाले, और ज्वाइनिंग द ब्रेकिंग इंडिया फ्रिंज ग्रुप, एक वरिष्ठ पार्टी के नेता एक फ्रिंज ग्रुप के साथ ही बार बार पॉलिटिक्स करना और भयंकर अब्यूज, total unacceptable terminology for constitutionally elected heads उपयोग करते रहना और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कटाक्ष होने के बाद अपोलोजाइज करना, मगर दोबारा वही साइकिल में अब्यूज करो, अपोलोजाइज करो, यही रास्ते पे चलना, डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज करना। I'm very scared to think probably he's becoming the doomsday man for India.